السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة؟ ايش اخباركم؟ كيف علومكم؟ كيف صحتكم؟ كيف نیتکم؟ جی تو دوستو، کیسے مزاج آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں. جی تو دوستو، کسی عربی سے ملتے ہیں اور اس کو آپ نے رمضان مبارک، عید مبارک، کوئی مبارک بات دینی ہے تو آپ کیسے بات کریں گے؟ ایک تو شکل یہ ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں، چونکہ ریئلٹی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عرب کے سامنے جاتے ہیں، السلام علیکم محمد، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تو کہتے ہیں کیف حالک انتا، کویس، میاں میاں، عید مبارک محمد. اس طرح بولتے ہیں. تو عربی سمجھتے ہیں کہ ہاں یار انہیں عربی زبان تو آتی نہیں ہے، ہاں انا کویس، انتا کویس، میاں میاں، ایسے کرتے ہیں اور خلاص. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں رہتی کہ اس کے ساتھ ہم مزید اسے سے جو ہے اپنی کنورسیشن کو بڑھا سکیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں عرب میں، جیسے کفیل ہے، کفیل سے ہٹ کر بھی بہت سے ایسے بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، یا عربی ہوتے ہیں، یا عیال حارہ ہوتے ہیں، جو کہ حارہ کے دب کے دوست ہوتے ہیں، یا آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، اس کو آپ مطلب ایک عربک میں اس طرح کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم اپنی زبانوں میں دیتے ہیں، لیکن وہ ہم دے نہیں پاتے. تو آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ میں نے اس ٹاپک پہ بنایا ہے کہ کسی کو عید مبارک کہنا ہے، رمضان مبارک کہنا ہے، یا سیام مبارک کہنا ہے، تو کس طرح سے کریں گے. ٹھیک اسی پروسیجر پر آج ویڈیو بنائی گئی ہے جیسا کہ میں نے پچھلی بنائی ہے، وہ ماشاءاللہ سے وہ وائرل بھی ہو رہی ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہ ویڈیو جا کر دیکھیں. کنورسیشن ہے اس میں، وہ نکنتا انا فی البیت، اس طرح کے جملے ہیں جو کہ ڈیلی لائف میں بولے جاتے ہیں. تو آج کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ مجھے ایسا لگا کہ اس ٹاپک پر بھی بنانی چاہیے، کہ جیسا کہ ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو اچھا، یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی دو قسموں پہ ہے. مطلب ایک شخص جیسے آپ کہتے ہیں رمضان مبارک، تو اس کے جواب میں سامنے والے بندے نے کیا کہنا ہے، تو وہ بھی میں نے اسی میں ایڈ کیا ہے. تو ویڈیو آج کی بڑی انٹرسٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے. تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں. اور سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو کر تو یار سبسکرائب. کیا کرتے ہو یار، سبسکرائب نہیں کرتے ہو، نہ لائک کرتے ہو، ٹھیک ہے. ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہو یار. دیکھو میں آپ لوگوں کے لیے رات کی اس پہر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آپ لوگ ہیں کہ بس لائک ہی نہیں کرتے. تو چلیں، سب سے پہلا ہے السلام علیکم کل عام وانتم بخیر. اب میں نے کچھ ایسا نہیں کہا کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. یہ وہ جملہ ہے جو کہ ہر جگہ بولا جاتا ہے. آپ مارکیٹ چلے جائیں، جب عید کا موقع ہوگا تو وہاں پر بلونز جو ہوتے ہیں وہاں پر غباروں پر بھی یہ لکھا ہوتا ہے کل عام وانتم بخیر. اور اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال آپ لوگوں کے لیے خوشیوں والا ہو. کلو عامہ یعنی کہ ہر سال، کلو سنا بھی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ انت بخیر، اور تم خیریت سے رہو، سلامتی کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے. اور سلام کا جو طریقہ کار ہے، یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بندے کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی. ہم سلام کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم، اس طرح سے بولتے ہیں. یا انڈین ہے تو وہ ایسے بولے گا السلام علیکم. بلکہ نہیں، اب تو مجھے نہیں آتا، پہلے میں اچھی نقل کر لیتا تھا، لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا کہ میں بھول گیا ہوں. لیکن سلام جو ہے آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ سمجھ جائے بندہ کہ یار واقعی بندے کے اندر دم ہے، اور یہ کافی عرصے سے یہاں جو ہے عرب میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بولنا ہے السلام علیکم، عین کی آواز نکالنی ہے. السلام علیکم کل عام وانتم بخیر، وانت بخیر. انت سنگولر کے لیے، وہ انتم یعنی کہ اگر بہت سارے عربی بیٹھے ہیں، جمع ہے، تو اس کے لیے جو ہے انتم لگائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام وانت بخیر والصحہ والسلامہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ اور صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ. یہ اب اس کا دعا جو آپ نے بولی ہے اس کو، اس کا جواب میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ انت میاں میاں نہیں بول دینا، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کے جواب میں یہی کہنا ہے وعلیکم السلام وانت بخیر والصحہ والسلامہ، ٹھیک ہے. یہاں پر ہو گیا ہمارا پہلا جملہ کمپلیٹ. تو اب جاتے ہیں دوسرے جملے کی طرف. دوسرا جملہ ہے لگتا ہے آج آپ بہت خوش ہیں. اب خوشی کا موقع ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پر یہ جملہ کہنا بنتا بھی ہے. تو اس کو عربی میں بولیں، یہ نہیں بول دینا انت کوئس، انت میاں میاں، انت فرحان، ٹھیک ہے. تو اگر عربک نہیں آتی تو یہ جملے جو ہے آپ بول سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ نے یہ بولنا ہے، یہ بالکل سلینگ عربک ہے. آپ نے بولنا ہے واضح لک مبسوط اليوم، بائن علیک انت مبسوط اليوم. مبسوط کا مطلب ہوتا ہے خوشی، خوشحال. انت فرحان بھی کہہ سکتے ہیں، اليوم یعنی کہ آج. واضح، واضح کا مطلب یعنی کہ مجھے لگ رہا ہے، شوبہ پڑ رہا ہے، یعنی کہ واضح ہو رہا ہے. یہ اردو کا لفظ ہے یار، عربک کا نہیں ہے، یہ اردو کا لفظ ہے. واضح بولنا ہے، ٹھیک ہے نا. ضاد کو جو ہے نا تھوڑا سا دال کی آواز نکالنی ہے. واضح لک،
वादिह लक यानी कि पता लग रहा है कि तुम आज बड़े खुश हो, मबसूत इंतालियो, ठीक है ना। तो उसके जवाब में वो दूसरा शख्स क्या कहेगा, अगर उसने आपको भी ये जुमला बोल दिया है तो आप उसके रिप्लाई में कहेंगे अकीद अल्योम ईद वन्नास कुल्लहा फरहाना। फरहाना, अब फरहान मैंने आपको पिछले जुमले में भी बता दिया कि खुशी को कहते हैं, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा जहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हो। अकीद का मतलब यानी कि हाँ, ऑफ कोर्स, कंफर्म ये बात है, बिल्कुल। अल्योम ईद यानी कि आज ईद है। अब यहाँ पर ईद का अगर इवेंट नहीं भी है तो अगर रमज़ान का भी है तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वैसे ये दुआएं जो है ना ज़्यादातर ईद के मौके पे ही बोली जाती हैं, ठीक है। अकीद अल्योम ईद व नास कुल्लहा फरहाना, कुल्लहा यानी कि सब लोग। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ कोर्स टुडे इज ईद एंड एवरीवन इज हैप्पी, ठीक है। इससे अगला जुमला है मैंने आपको इस मोहल्ले में पहली बार देखा है। अगर कोई शख्स पहली मर्तबा रैंडम बंदा आ गया है, दोस्तों के साथ एक नया बंदा आ गया, अब देखें ये कन्वर्सेशन बढ़ाने का तरीका है, अपनी जो गुफ्तगू है उसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए ये जुमला मैंने ऐड किया है। और एक एक जुमले पे मेहनत की है और आप देखेंगे कि इसका किस तरह से जो इसका आउटपुट निकलता है जब आप इसको बोलेंगे। अच्छा, इसको इसको अरबी में बोलेंगे अव्वल मर्रा अशूफक हिना फिल हई, फिल हई। अब ये हई जो है ना वो जिंदगी वाला हई नहीं है। जैसे हम बोर्ड देखते हैं हई अल रोज़ा, हई अल शारिअ फ़लस्तीन, हई अल फलां, हई का मतलब होता है मोहल्ला बोलते हैं, वैसे हारा भी बोलते हैं, लेकिन हई जो है जस्ट हई वो हारे को कहा जाता है। एक एक लफ्ज़ का मतलब जान लें। अव्वल मर्रा पहली मरतबा, अशूफक अनशूफ इंता नहीं बोल देना, अशूफक। ये जो अलिफ हमजा है इसका मतलब होता है मैं, और जो आखिर में काफ है इसका मतलब है तुम। अशूफक, शोफ का मतलब देखना होता है। अशूफक हिना यानी कि यहाँ, फिल हई यानी कि इस हारे में, इस मोहल्ले में, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई सी यू हेयर इन द नेबरहुड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब इसके जवाब में आपने क्या कहना है, अब जवाब भी साथ साथ मैंने ऐड किए हैं, ठीक है ना, एक एक जुमले पे ध्यान देना है। मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, आना इजी हिना अशन शोफ सदीक सवा सवा। नहीं बोलना भाई, नहीं बोलना, आपने बोलना है आना जीत अजोर सदीकी हिना। आना जीत, आना इजी हिना नहीं बोलना। आना जीत यानी कि एक पास्ट सेंटेंस है, मैं आया हूँ, आया था, ठीक है। मैं आया हूँ या आया था, बल्कि ये जो है पास्ट में आया जाता है। मैं यहाँ आया था अजोर, अजोर का मतलब जियारत से निकला है। अजौर, अजौर भी कह सकते हैं, अजोर भी कह सकते हैं। अजौर सदीकी मेरा दोस्त, या साहबी, ठीक है, हिना यानी कि यहाँ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई केम हेयर टू विजिट माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये जुमला पसंद आया तो साथ साथ लाइक भी करते रहें। तो इसके साथ ही अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भी इस तरह के छोटे छोटे जुमले सीखना चाहते हैं, इस पर मैंने एक पूरा सा जो है एक टॉपिक बनाया हुआ है। और यानी कि तमाम जुमले जो है मैंने अपनी एक पीडीएफ बुक में तैयार की है, जो कि बड़ी ही सालों की मेरी मेहनत है। जो चीज़ें आप अरब में वहाँ पर बोलने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब मैंने इस बुक में ऐड किया है। अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं खरीदी तो इस किताब को ख़रीदें और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत से लोग इस किताब को ख़रीद कर फ़ायदा उठा रहे हैं। और माशाल्लाह से वो बैक मैसेज करते हैं कि सर पहले हमारी अरेबिक जो है हम सुन तो लेते थे लेकिन हमें पता नहीं था कि जवाब में क्या बोलना है। तो ये चीज़ें मैं आपको वीडियोस में भी सिखा रहा हूँ और अपनी पीडीएफ बुक में भी मैं ये चीज़ें मैंने ऐड कर रखी हैं। ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो लोग वहाँ पर नए हैं और जो अभी जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप अपने पास कलेक्ट करें और इसको जाने से पहले याद करें। तो जब आप पुराने हो जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये आप अरेबिक ज़बान ना सीख कर आपने कितनी बड़ी गलती की है, ठीक है। तो जिसको ये चाहिए तो वो ख़रीद सकता है। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन टीचिंग भी कराते हैं। डिफरेंट बैच हैं, 101 भी क्लासेस हैं और साथ साथ हम ग्रुप क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं तो वो भी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। जी तो दोस्तों, इससे अगला जुमला है इस साल आपका रमज़ान कैसा गुजरा। तो इसको अरबी में बोलेंगे केफ रमज़ान मआक हाज़ा सना। इस साल यानी कि हाज़ा सना, केफ रमज़ान यानी कि कैसा रमज़ान था, मआक तुम्हारा, तुम्हारे साथ, हाज़ा सना यानी कि इस साल, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ वाज रमज़ान फॉर यू दिस ईयर, ठीक है। तो अब इसके जवाब में बड़ा ही एक सादा किस्म का जवाब जो है मैंने तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और पुरसकून था, ठीक है ना। आपने मियाँ मियाँ कह के आप बात कोई ख़त्म कर देते हैं। आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह कान जमील व हादी मुर्ताहा,
मुर्ताह का मतलब यानी कि पुरसकून, व हादी का मतलब भी जो है इसका मीनिंग भी जो है बहुत ही पुरसकून के होते हैं, कंफर्टेबल था, पीसफुल था। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कान यानी कि था। ठीक है ना। जमील बड़ा ही खूबसूरत, व हादी और बड़ा ही पुरसकून। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज नाइस एंड पीसफुल। ठीक है। ये जुमला ख़त्म हुआ और अगला जुमला है यकीनन अफ्तार ख़ानदान के साथ किया होगा। अब देखिए ये जो लोग जिनकी फैमिली नहीं है उनके लिए तो ये तंज लगेगा, लेकिन जो लोग विद फैमिली हैं उनके लिए ये जुमला परफेक्ट है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने ख़ानदान के साथ ही रमज़ान गुजारा करें, लेकिन जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप लोग भी मजबूर हैं कि बाहर जो है आप किस लिए गए हैं और आपका असल मकसद क्या है, वो है सिर्फ पैसा कमाना। ठीक है। जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली से दूर हैं और मुझे बड़ा एहसास होता है कि आप लोग किस तरह अपनी फैमिली के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बाल बच्चों को छोड़कर। अलमहिम इसको अरबिक में बोलेंगे अकीद अल अफ्तार कान मा अल आइला। अकीद यानी कि यकीनन, कंफर्म ये बात है, श्योर, बिल्कुल। ठीक है। अल अफ्तार यानी कि जो फतूर है, कान मा आइला, मा अल आइला यानी कि आइला जो है फैमिली को कहा जाता है। ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे श्योरली यू हैड अफ्तार विद फैमिली। तो अब इसका जवाब जो है ये भी आपने अच्छी तरह इसको रक्किज कर लें, रट लें इसको। हाँ ज़्यादातर दिन हम सब इकट्ठे होते थे। नाम अगलब अल अय्याम कुन्ना नज्तम खुल्लना, खुल्लना। ठीक है। यानी कि हम ज़्यादातर जो है एक साथ हम रहते थे। ठीक है। अगर आप की फैमिली नहीं है तो आप उसको जवाब में क्या कहेंगे? अगर आपको जवाब आता है तो लिख दें, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ला यबोया अल आला फिल बलदना, यानी कि मेरी जो फैमिली है वो बलद में है, हमारे मुल्क में है। ठीक है ना। आना अजूबिहिना यानी कि मैं यहाँ पर छड़ा हूँ। ठीक है। आयलती मोहिना, मेरी फैमिली यहाँ नहीं है। ठीक है। आयलती फिल पाकिस्तान, फिल हिंद, फिल बांग्लादेश, फिल मगरिब, जहाँ जहाँ से हैं आयला फ़ी के साथ अपने मुल्क का नाम लगा देंगे, तो इसके मीनिंग ये होंगे कि आपकी जो फैमिली है वो आपके मुल्क में है। अगर आपने शादी नहीं की तो आप कहेंगे ला यबो लिस्सा अना मुजव्वस, यानी कि नहीं मैं अभी गैर शादीशुदा हूँ। अना आज़ब यानी कि मैं जो है अभी सिंगल हूँ, छड़ा हूँ। ठीक है। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। आगे है नमाज ईद के बाद क्या किया। अब ये एक रैंडम सा सवाल है, ऐसे उर्दू में आप अक्सर पूछते रहते हैं। विश सवैत बाद सलातल ईद। देखिए कितना आसान है। विश सवैत अंता इश सवी बादल ईद, ऐसे नहीं बोलना। विश सवैत यानी कि तुमने क्या किया, बाद सलातल ईद यानी कि ईद की नमाज के बाद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू डू आफ्टर ईद प्रेयर। तो इसका जवाब जो है ये भी बड़ा खूबसूरत मैंने इसमें लिखा है। मैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिला। अब ये छोटी सी एक्टिविटी है, अगर आप कोई और जुमला बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके दूंगा। ठीक है। तो अरबी में बोलेंगे रुहत असलम अला अल अगारिब वल जैरान। अब ये चीज़ें शायद आप लोगों ने पहली बार सुनी हो। रहत यानी कि मैं गया था, असलम उनको सलाम करने, आला उन पर, अल अगारिब यानी कि गरीबली, गरीबली जो है रिश्तेदारों को जो है अल अगारिब कहा जाता है। ठीक है। अल अगारिब यानी कि करीब वाले, ये जो है ना लफ्ज़ करीब से निकला है। अल अगारिब जमा है, गरीब की जमा है। अल अगारिब यानी कि जो मेरे करीब, मेरे जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके लिए ये जुमला बनाया गया है। वल जैरान तो आपको पता ही होगा, यानी कि मेरे हमसाए। ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे आई वेंट टू ग्रीट रिलेटिव्स एंड नेबर्स। ठीक है। इससे अगला जुमला है आज मौसम वाकई अच्छा है। अब मौसम पे आ जाते हैं, रेंडमली ऐसा ही होता है, गुफ्तगू के दौरान मौसम पे भी आ जाते हैं। वादिह इन अलजो अलयोम जमील। अब वादिह, वादिह क्यों लगा रहा हूँ, यानी कि ये अरबी का एक हिस्सा है। वादिह एतकिद यानी कि मुझे लग रहा है, एतकिद भी बोलते हैं किसी किसी जगह पे। ठीक है ना। इन अलजो, जो का मतलब मौसम, अलयोम जमील यानी कि बड़ा ही खूबसूरत है। ठीक है। तो इसके लिए बोलेंगे द वेदर इज़ रियली नाइस टुडे। तो इसके जवाब में अगर उसने ऐसा कह दिया तो आप जवाब में बोलेंगे नाम मुनासिब लिल खरूज वल ज़ियारा। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हाँ बाहर जाने और मिलने के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। तो इंग्लिश में बोलेंगे येस गुड फॉर गोइंग आउट एंड विजिटिंग। अब अगला आठवां जुमला है क्या आपने यहाँ की ईद की मिठाइयाँ चखी हैं। अब ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त जुमला है।
हल जर्रब्त हलवियात अल ईद हिना। जर्रब्त का मतलब तो आप जानते होंगे, अंत जर्रब हलवा ही ना ऐसे नहीं बोलना। हल जर्रब्त यानी कि क्या तुमने जर्रब किया हलवियात मिठाइयाँ, अल ईद हिना, ठीक है, यानी कि डिड यू ट्राई द ईट स्वीट्स हेयर, और क्या वाकई आप लोगों ने वहाँ की मिठाइयाँ ट्राई की हैं या नहीं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जवाब में कहेंगे हाँ सच में बहुत मज़ेदार थी। नाम सराह कानत लजीज़ा जिद्दन मर्रा, ठीक है ना। नाम सराह, सराहा का मतलब सच, सच्ची बात है। इस सराहा के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर भी मैंने तफसील से वीडियो बनाई हुई है। अब एक एक लफ्ज़ जो मैं ये आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई है जो अपने चैनल पर मैंने अपलोड कर रखी हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप और भी मज़ीद भी वीडियोस जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने डिटेल से समझाई हुई हैं, ठीक है। नाम सराहा कानत लजीज़ा जिद्दन, यस ऑनेस्टली दे वर वेरी डिलीशियस, ठीक है। अगला जुमला है मुझे ईद का माहौल बहुत पसंद है, अना उहिब अजवा अल ईद कसीर। अब ये बड़ा ही सिंपल जुमला है, और अगर इसके साथ अगर आप खड़े हैं इसका जवाब देना चाहते हैं तो आप इस कन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए आप कहेंगे मुझे भी इसकी खुशी पसंद है, ठीक है। हत्ता अना उहिब अल फरह अल्ली फी, अल फरह यानी कि जो खुशी है, मुसर्रत जो है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑल्सो लव द हैप्पीनेस इन इट। अब इसका आखिरी जुमला है, 10 जुमले थे लेकिन ये चीज़ें इसमें मैंने हर वो चीज़ ऐड की है जो कि आप रेगुलर अपनी बात बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। क्या आप यहाँ आज रहेंगे, तो रैवी बोलेंगे हल सतबका है ना अलियोम, सतबगा, सतबगा यानी कि क्या तुम यहाँ पर रहना चाहते हो, या फिर ये भी कह सकते हैं तिबा तईश हिना तिबा तौगा फिना, ये भी आसान उसमें आ जाते हैं, ठीक है, अगर ये लफ्ज़ मुश्किल रह गया। हल सतबगा है ना अलियोम, या तिबगा, तिबगा भी कह सकते हैं, ठीक है, तिबगा तगो है ना, ये भी कह सकते हैं। विल यू स्टे हेयर टुडे, तो इसके जवाब में बोलेंगे नाम रब्बमा हत्ता अलमसा। अब रब्बमा का सुन के आप शॉक्ड मत हो जाना, इसका मतलब है नाम युमकिन, हो सकता है। युमकिन का मतलब यानी कि मे बी, शायद। वैसे इसको अरेबिक में रब्बमा भी बोलते हैं, ठीक है ना, रब्बमा या फिर युमकिन। युमकिन बोल दें तो ज़्यादा बेहतर है, ये काफ़ी इजी भी है, ठीक है ना। इसको उर्दू में भी मुमकिन कहते हैं, तो अरेबिक में युमकिन कहते हैं। युमकिन यानी कि हो सकता है, मे बी। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यस मे बी टिल इवनिंग। जी तो दोस्तों ये थे वो जुमले जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को आने चाहिए। तो आज की वीडियो किस तरह से लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मैंने लिंक जो है वो नीचे शेयर कर रखी है। अगर आप मज़ीद अरेबिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या बुक चाहिए तो उसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और हर आने वाला जो खुशी का मौका है उसमें आप लोगों ने हमें भी अपनी खुशियों में शरीक रखना है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के फ्यूचर के लिए बड़े ही जो है फ़िक्रमंद है। हमारी टीम और हम जो है हमेशा आप लोगों के करियर के बारे में सोचते हैं कि आप लोग किस तरह से जो आपको मसाइल पेश आ रहे हैं ज़बान को लेकर ख़ास कर। वैसे तो जो मसाइल आने हैं वो आके रहते हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि आप लोगों को के साथ अल्लाह ताला हर वो मामला करे जो कि आप लोगों के लिए सूटेबल हो, जो आसान हो, ठीक है। आसान रिस्क की हमेशा अपने लिए जो है आपने दुआ करनी है। रिस्क हर शख्स को मिलता है, रोज़ी और रिस्क, लेकिन आप लोगों ने हमेशा जब भी रोज़ी मांगनी है तो आसान का उसके ज़िक्र लाजमी करना है, ठीक है, कि ए अल्लाह हमें आसान रिस्क दे, ठीक है, ताकि आपका जो आपके ऊपर कोई वज़न ना हो, ठीक है। तो चलें ठीक है, मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो ओके, टेक केयर, मास्सलामा।